All right, welcome back now for an NDTV and a coup presentation. All the leaders who are cooing on the coup app, let's get their comments. First of all, Bhagwant Mann, who's now tipped to be the Chief Minister of Punjab, given the spectacular performance of the Aam Aadmi Party. He has cooed and he says, prostrated at Gurdwara Shri Mastuana Sahib, prayed for the golden future of Punjab and the welfare of all. Harpal Singh Cheema says, given the initial trend in Punjab, it is certain that the Aam Aadmi government will be formed in Punjab. So that is a big and a dramatic win for the Aam Aadmi Party. Remember, they were very hopeful in 2017 as well, however, could not manage to get the numbers. This time around, winning with full force. But let's shift focus quickly back to Uttar Pradesh, where I'm standing right now. Lots of action taking place, lots of celebrations going on at the BJP headquarters. Here is a report by my colleague Alok Pandey, who caught up with baby Adityanath. It's a day of celebration at the BJP office here in Lucknow, and perhaps the color that you see on an election day is something that you won't on another day. Now, of all things that you can see, you have a young kid dressed as the Uttar Pradesh Chief Minister, as Yogi Adityanath. In fact, I saw that at his back there's also a poster, if we can just, or a banner or something, it says Jai Shri Ram. मैं योगी मोदी जी आपको यूपी की जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इनको वापस इधर कर दीजिए। क्या नाम है इनका? निव्या। कितने साल के हैं? 1.5 साल के। हाँ? 1.5 साल के। 1.5 साल के हैं। ये बुलडोजर इनको दिलाने का आइडिया किसका था? आपका? डैडी का था मेरे। ये आपके पिताजी हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि चौधरी है। रवीन जी, छोटे से बच्चे को लाए हैं, बुलडोजर भी दे के लाए हैं, क्या आइडिया ये है कि मैं योगी के काम से मेरा पूरा परिवार बहुत संतुष्ट है। आज हम लोग जो चल रहे हैं, ये योगी जी की देन है। डर भय के मुक्त होकर आज हमारे बच्चियां बाहर निकल रही हैं, ये योगी जी की देन है और योगी जी के काम से बहुत संतुष्ट हैं और इसीलिए मेरा पूरा परिवार योगी जी से समर्थक में मिलकर इस पूरी ड्रेस को मेरे पूरे परिवार ने मिलकर इसको रचाया है। थोड़ी देर बाद तो मुझे लगता है लेके जाना पड़ेगा, रोने लगेगा बाद में। आप ये बहुत हिम्मती है। अच्छा। ये बहुत हिम्मती है, रोएगा नहीं। हाँ। ये बिल्कुल बुलडोजर की तरीके मजबूत बना रहेगा। ये जो छोटे योगी है, ये उसकी देन है। मैम, आपके लिए बीजेपी के कैंपेन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या था जिसकी वजह से आपको लगता है जीत हुई है? महिला सुरक्षा और वो उन्होंने हम लोग के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने हम लोग को राशन वासन सब कुछ दिलवाया, इस वजह से वो है। और सबसे बड़ी बात तो महिला सुरक्षा कि वो जी। चलिए ठीक है। पहले कभी भी ये योगी आदित्यनाथ बने हैं कि पहली बार बने हैं? ये पहली बार बने। पहली बार बने, मगर एक इनसे बड़ी बहन है, वो बन चुकी है। अच्छा जी, पहले भी वो बन चुकी है, उन्हें डैडी ने बनाया। So there you have it, like I said, unique shots here at the BJP office in Lucknow. So, as a general principle, I think what politicians and their supporters must do is keep children out of any form of affection. Whether it is getting a kid dressed up as Bhagwant Mann or Arvind Kejriwal, or for that matter, Yogi Adityanath. Kids don't deserve this. However, if it's a fancy dress competition, one can understand. But this is no fancy dress competition. Anyway, moving on. Just a short while ago, right on this road, which is right outside Vidhan Sabha and the BJP headquarters, on this road we saw something very fascinating, which has now become a prop which the Bharatiya Janata Party has decided to use to send out a political message. What the BJP supporters call is a bulldozer. Actually, it's a JCB crane, but the BJP workers and supporters in rally after rally of Yogi Adityanath call it a bulldozer. So what is a bulldozer doing in a Yogi Adityanath event or at the Bharatiya Janata Party headquarters? Well, it is to reiterate and exert the image of Yogi Adityanath as a bulldozer wale baba. That here is a chief minister who is going to raise all houses and properties of people who he thinks are criminals. That's a message that the BJP wants to send out. Let's watch this report. भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत का जश्न मना रही है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये जुलूस निकल रहा है। ये योगी आदित्यनाथ के समर्थक हैं जो डीजे पार्टी निकालना आप शुरू कर रहे हैं। और अगर आप देखें कि जिस तरीके से पहले बात हो रही थी, योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर वाले बाबा कहा जा रहा था,
तो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट विनीत आपको दिखाएंगे, पीछे एक बुलडोजर भी है। ये देखिए, बुलडोजर में लोग बैठे हैं और ये जो रैली निकल रही है ये बुलडोजर पे बैठ करके निकल रही है, जिसमें लोग चढ़े हुए हैं। इस पूरे कैंपेन में, रैलियों में कई जगह हमने देखा था, अलग अलग जगहों पर बुलडोजर लोग ले करके आए थे। तो ये जीत का जश्न मन रहा है, क्योंकि अब बीजेपी अपने विधायक लेकर के यहां पर जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विनीत के साथ संकेत उपाध्याय, एनडीटीवी। So Holi may be celebrated according to the calendar on the 17th and the 18th, but at the BJP headquarters, Holi has come in a little early. I can hear from the background Holi songs playing out and people using Abir and Gulal, of course in the color of the Bharatiya Janata Party, celebrating this festival a little early. Because for them, today also marks a Holi-like occasion. All right, just a short while ago, I also spoke to the Law Minister in Yogi Adityanath's government on what he thinks worked for the Bharatiya Janata Party and what did not work for the Samajwadi Party. Here's an interview with Brijesh Pathak. हमारे साथ हैं ब्रिजेश पाठक जी, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। ब्रिजेश जी, कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। चुनाव प्रचार के दौरान मैंने इस बात की जानकारी आप लोगों को दी थी कि प्रदेश के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो आम आदमी तक पहुंची हैं, जैसे पक्का मकान सबको मिला है, शौचालय सबके घर में बना है, निःशुल्क बिजली का कनेक्शन मिला है, गैस का कनेक्शन मिला है, 5 लाख तक का इलाज। पहले सबसे पहले बहनों के गहने बिकते थे। कोई अगर किडनी फेल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, ये ब्रेन हेमरेज हो जाए तो गहने बिकते थे, खेती बिकती थी, कर्जा लग जाता था। 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। सबसे बड़ी बात ये, महीने में 2 बार राशन, प्रति यूनिट 5 किलो। जो भोजन की चिंता खत्म हो गई। सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर हमने मेंटेन किया। तो प्रदेश के लोगों को महसूस हुआ कि माननीय मोदी जी ही हमें एक ऐसी सरकार दे सकते हैं जो हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। गरीब अमीर आदमी दोनों खाई मिट्टी है। अगर अमीर आदमी 2 रोटी खा रहा तो गरीब आदमी को रोटी की चिंता उत्तर प्रदेश में नहीं है। हमने उसको इतना पर्याप्त भोजन उपलब्ध करा दिया है कि लोग महसूस किए कि उनकी अपनी सरकार है जो उनके जीवन में बदलाव लाना चाहती है। दुख में खड़ी होती। कोरोना काल आया, कई राष्ट्राध्यक्ष परेशान दिखे, लेकिन मोदी जी ने क्या किया? पूरे यूपी को कंट्रोल किया, योगी जी ने कंट्रोल किया। हमने उनको दवाइयाँ भी दी और डबल वैक्सीनेट। आज यूपी में कहीं कोई कोरोना का खतरा नहीं है। प्रत्येक नागरिक को डबल वैक्सीन लग चुकी है और नौजवानों को, बच्चों को, 18 साल वालों को भी हम वैक्सीन लगा रहे हैं। तो लोगों ने महसूस किया कि यूपी बीजेपी के हाथों में सुरक्षित है और सब लोगों ने जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टी लाइन को तोड़ करके कमल के बटन को दबा दिया। और मैं बार बार कहता था प्रचंड बहुमत, लोग मानने को तैयार नहीं थे। एक ऐसा मतदाता वर्ग तैयार हो गया है जो देश के प्रति, समाज के प्रति और प्रदेश को आगे बढ़ते देखना चाहता है। और समझ जी, आपको लगता नहीं है कि ठीक है, देखिए जीत होती है और प्रचंड बहुमत वाकई है जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के भी सीट शेयर, वोट वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप ये मानेंगे कि एक रोष था जो कि वहां पर भी दिखाई दे रहा है? बता, रोष नहीं था। मैं इसका जवाब मैंने अभी आपके जो इंग्लिश मीडियम का चैनल है उस पर मैंने दिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी एक प्लेटफार्म बन गया, भारतीय जनता पार्टी की विरोध का धुरी बन गई। तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से खिलाफत वाले लोग नहीं इकट्ठा हुए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लोग इकट्ठा हुए जो सत्ता पाने के लिए आपस में बंटवारा कर रहे थे कुर्सियों का। कोई मंत्रालय बांट रहा था, कोई डिप्टी सीएम बन रहा था, कोई कह रहा था कि हम ये खनन का पट्टा लेंगे, कोई कहता था कि हम इतना पैसा लेंगे, कोई कहता था कि हम इतना मकान लेंगे। तो प्रदेश के लोगों ने उन्हें नकार दिया। जो सत्ता में बंटवारा हो रहा था, जो विभिन्न लोग इकट्ठा होकर के सत्ता को लूटना चाहते थे, गरीब आदमी के हक को लूटना चाहते थे, प्रदेश के लोगों को महसूस हुआ। All right, let's also play out this conversation that we had earlier with BJP MP from Mathura, Hema Malini. Interesting thing that she said and spoke about in the context of this victory. Listen in. Any memorable lines from your movie which you used to once in a while say to everybody, because you have so many famous lines? There's only Basanti का dialogue बोलना पड़ता है. Whether I like it or not, because just to please the people, you know, they feel very happy the moment I
I say Basanti, the name only, they get very excited. There's a lot of sound and happiness I can see in the face of the public. So why not I please them by saying one line, Chal Dhannu aaj बसंती की इज्जत का सवाल है, तो खुश हो जाते हैं. क्या बात है. That transforms into what also, definitely. My fans, my people are, the people who love me, they will definitely vote for that. Excellent. It shows you how Sholay, after what, almost 5 decades, it's still something that people remember. All right, that's a wrap in this segment of, in collaboration with Coup. Keep watching. Our programs continue after a short break.